Radhe Radhe. Uh, Yesterday we have taken the notes for digestive system. Now we are supposed to start digestive system studying in detail. Now what is digestive system? How does it work? So you can see a figure here of a digestive system, that is human digestive system. And here I have drawn a small mind map of human digestive system. If you remember, I told you human digestive system basically works in 5 stages. The first stage is ingestion. Ingestion means taking of food. The second stage is digestion. The third stage is absorption. Fourth stage, assimilation. And last stage, that is egestion. Digestion starts from mouth. Digestion starts from mouth and completes at anus. In digestive system, we have two types of organs, glands. We call this as one as associate glands and another as accessory gland. That means we have two main glands which are associate and another are accessories. Associate gland means the path through which digestion moves. That is known as associate glands. We will consider as mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus. These all are known as main organs. And accessory organs which are also required, they are salivary gland, liver, pancreas, etc. So now we shall study how the digestion in human beings starts. So first of all, see, food is taken by our hands and kept in the mouth. So first, that is ingestion point. The first, actually, digestion of food starts from mouth. Here, the mouth is a point of ingestion for digestion of food. यानी फूड का डाइजेस्टिव सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले फूड माउथ के अंदर रखा जाता है. तो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ इटसेल्फ. अब माउथ कंटेन्स 3 थिंग्स: टीथ, टंग, बकल कैविटी एंड सलाइवरी ग्लैंड. तो ये 4 चीज होती है जो माउथ के अंदर होती है. एक टीथ. टीथ से क्या होता है, जब खाना अंदर रखा जाता है, व्हेन फूड इज टेकन इनटू द माउथ, फर्स्ट इट इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द टंग. जो आपकी टंग है उसके फ्लोर पे खाना रखा जाता है. और जो टंग बेसिकली लाइज इन द बकल कैविटी. हियर टंग लाइज इन अ बकल कैविटी. टंग लाइज इन द बकल कैविटी. तो बकल कैविटी आ गया, टंग आ गया. नाउ व्हेन फूड इज केप्ट ऑन द टंग, सलाइवा गेट मिक्सेस विद द फूड फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवा आपको पता है, आपके मुंह के अंदर जो वाटरी लिक्विड होता है, दैट इज नोन एज सलाइवा. नाउ दैट सलाइवा comes from salivary gland and get mixed with the food and makes the food soft. अब जैसे फूड सॉफ्ट हो गया, आपके टीथ का सबसे पहला काम होता है तो टीयर इट, खाने को टीयर करना और फिर उसे ग्राइंड करना. When the teeth are grinding the food, it makes a ball of a food. It makes a ball of a food. Once again, when food is injected, that is injected in the mouth, it is kept on the floor of the tongue. In buccal cavity, the food is cut with the help of teeth, then it is chewed and grind with the help of teeth. Now comes the part of salivary gland. Now what does the salivary gland does? So salivary gland secretes saliva to make the food soft. And as the food becomes soft, it is easy to grind, it is easy to chew. Moreover, it is easy to move in other organs also. Now, salivary gland contains amylase. It contains amylase. Amylase का काम क्या होता है? वो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को और उसको कन्वर्ट करता है माल्टोस के अंदर. It converts the starch. It digests the food. It digests the starch and convert into maltose. This is the basic word of salivary gland. Now, what happened? Food, when it has become in a semi-solid paste form, that is saliva get mixed with it. तो अब वो फूड
आपके बकल कैविटी से इट विल मूव टुवर्ड्स ऑसोफेगस. ऑसोफेगस इज नथिंग बट योर फूड पाइप. खाना ऑसोफेगस से मूव करता करता सीधा का सीधा ढपक पेट के अंदर जाएगा. तो नाउ फ्रॉम ऑसोफेगस फूड मूव्स टू स्टमक. अब स्टमक के अंदर क्या होता है? तो स्टमक के अंदर फूड चर्न होता है. पेट के अंदर, आपके पेट के अंदर एक चक्की है. उस चक्की के अंदर फूड चर्न होगा. दैट इज फूड इज चर्न इन स्टमक. इट ब्रेक्स डाउन. It breaks down into small pieces and is converted into semi-solid paste. So food breaks down there and it get converted into semi-solid paste. Now food stays into your stomach for at least 3 hours. Food stay into your stomach. खाना, आपका जो खाया गया खाना है वो आपके पेट के अंदर कम से कम 3 घंटे तक रहता है. अब आगे क्या होता है? उससे पहले जब आपका फूड पास होता है उस समय स्टमक के अंदर से 3 चीज सीक्रेट होती है जिसको हम लोगों ने एसेसरीज कहा था, पहले आपको याद होगा. अब 3 चीज सीक्रेट्स कौन कौन सी होती है? तो पहली चीज सीक्रेट करता है स्टमक, दैट इज डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सेकंड थिंग स्टमक सीक्रेट करता है दैट इज पेप्सिनोजन. And third thing which is secret is known as mucus. So stomach secretes 3 things. Stomach secretes 3 things. That is again dilute HCl, पेप्सिनोजन and mucus. अब dilute HCl क्या करता है? जब खाना हम खाते हैं, when we eat food, तो फूड्स के साथ हम काफी बैक्टीरियाज वगैरह भी खा जाते हैं, हम कितना भी ध्यान रखें. तो डाइल्यूट HCl पहली बात तो फूड को एसिडिक बना देता है. और जैसे ही फूड एसिडिक हो गया ऐसे वो सारे के सारे फूड्स के अंदर के बैक्टीरिया को मार देता है. अब सारे तो नहीं मरते हैं पर हम ऐसा मानते हैं 70%, 60 to 70% के आसपास के बैक्टीरिया को वो मार देता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सेकेंड थिंग पेप्सिनोजन. पेप्सिनोजन विच इज बीन सीक्रेटेड फ्रॉम स्टमक, इट डाइजेस्ट प्रोटीन फ्रॉम द फूड. इट डाइजेस्ट प्रोटीन फ्रॉम द फूड. फूड के अंदर जो भी प्रोटीन है उसको वो डाइजेस्ट कर लेगा. और तीसरा म्यूकस. म्यूकस एक्चुअली होता है स्टिकी सब्सटेंस. इट इज अगेन वाटरी स्टिकी सब्सटेंस. म्यूकस इज समथिंग लाइक सलाइवा ओनली. तो वो जो स्टिकी सब्सटेंस है वो क्या करता है? इट प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ योर स्टमक. इट प्रोटेक्ट्स द वॉल्स ऑफ योर स्टमक. ये जो स्टमक की वॉल्स हैं, ये स्टमक की वॉल्स को इट प्रोटेक्ट्स विथ इट्स ओन प्रोडक्ट, दैट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन. इन दोनों को, क्योंकि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है तो वो पेट को डैमेज कर देगा, स्टमक की वॉल को डैमेज कर देगा. तो वो अपने ही सिक्रीशन से अपने आप को डैमेज ना हो इसलिए वो क्या करता है? म्यूकस प्रोड्यूस करता है. अगेन स्टमक 3 चीज प्रोड्यूस करता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? फूड को एसिडिक बनाता है और बैक्टीरियाज को मारता है. पेप्सिनोजन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट द प्रोटीन. एंड म्यूकस क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द वॉल्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम इट्स ओन सिक्रीशन, दैट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन. नाउ in this stomach actually partial digestion is completed and now the food from the stomach moves to small intestine. It moves to small intestine, that is from stomach. It exists through a muscle which is known as sphincter muscles. I use a word, I repeat it. It exists from the stomach with the help of sphincter muscles. Now food comes into small intestine. Now in small intestine food comes. Now when food comes in small intestine, the digestion of carbohydrate, protein and fats are done in small intestine. Actually your digestion process do not get stops. Digestion process get continues after it moves from stomach also.
अब यहां से सेमी लिक्विड फॉर्म में फूड धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट हो गया और नाउ इट कम्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, अब ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन इज अप्रोक्सीमेट 6.5 meters long. It varies. The length of intestine varies in other organisms also. किसी organisms की length कम होती है, किसी organisms की length ज्यादा होती है, but humans small intestine basically 6.5 मीटर की होती है, approximately 6.5 मीटर की होती है, ऐसा माना जाता है. It is longer than the sari which your mother wears. Now, in small intestine, as I told you, digestion of carbohydrate, protein and fats take places. अब जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ऐसे ही साइमल्टेनियसली उसी समय आपकी बॉडी के two more organs which are accessories organs secretes their enzymes or secretes their juices. Now that two organs are liver and pancreas. You can see here liver and pancreas here. See, this is pancreas and this is liver. Now what happen? Liver secretes bile juice, B-I-L-E, bile juice. Actually bile juice is stored in gallbladder which is yellowish liquid. करेगा क्या? लीवर क्या करेगा? बाइल जूस सिक्रीट करेगा जो गॉल ब्लैडर में. और अब वो बाइल जूस करता क्या है? बाइल का काम क्या है? एक्चुअली स्टमक में से जो फूड आया है, द फूड विच हैज केम फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था स्टमक के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स होता है उसके अंदर, तो फूड एसिडिक हो गया. अब उस एसिडिक फूड अगर इंटेस्टाइन में जाएगा, देखिए स्टमक के वॉल्स के पास म्यूकस था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, पर इंटेस्टाइन के पास म्यूकस नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए. तो अब क्या होगा? तो वो क्या करेगा? बाइल जूस जो है, इट एक्चुअली मेक्स द फूड अल्कली इन नेचर. इट कंटेन्स सॉल्ट्स. आप लोगों ने एसिड बेस और सॉल्ट लेसन में पढ़ा होगा. एसिड प्लस बेस अगर मिक्स होता है तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है. सेम वे एसिड और सॉल्ट प्रोड्यूस होगा तो भी बेस प्रोड्यूस हो सकता है. तो हियर व्हाट हैपेंस? इट मेक्स द फूड अल्कलीन इन नेचर. व्हाट इट इज डूइंग? इट मेक्स द फूड, बाइल जूस मेक द फूड अल्कलीन इन नेचर, पहली चीज. दूसरा वो क्या करता है? डाइजेस्ट फैट्स. हम लोगों ने 3 चीज का डाइजेशन के लिए पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन को, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट. तो उसमें से वो सबसे पहले क्या कर रहा है? फैट्स को डाइजेस्ट कर रहा है. एंड मेक्स इजी फॉर एंजाइम्स. एंजाइम्स को रिएक्ट करने के लिए उसको थोड़ा इजी कर दे रहा है. अब एंजाइम्स कौन से, एंजाइम्स कहां पर है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क. नहीं, हमने 2 नाम बोले थे आपको जब हमने ये डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया था. तो पहला नाम मैंने दिया था आपको लीवर और दूसरा नाम दिया था आपको पेनक्रियास. तो नाउ व्हाट पेनक्रियास विल डू? पेनक्रियास क्या करेंगे? पेनक्रियास अपने अंदर से 3 एंजाइम सीक्रेट करते हैं. पेनक्रियास secretes 3 enzymes, that is trypsin, amylase and lipase. 3 एंजाइम्स क्रिएट कर रहे हैं. फिर से ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लिपेज. अब इन तीन एंजाइम्स के नाम याद रखने के लिए हमने एक शॉर्टकट दिया है, टाल. सर आप लोगों ने देखा होगा एक पिक्चर आई थी अभी, बाला और उजरा चमन. ये 2 मूवीज आई थी जिसमें वो बंदों के ऊपर बाल नहीं होते हैं. अगर बाल नहीं होते तो उसे टाल कहा जाता है. तो हम यहां पर एक वर्ड लिख देते हैं छोटा सा, टी. हम यहीं पे लिख देते हैं TAL, टाल. तो पेनक्रियास 3 एंजाइम सीक्रेट करता है. कौन से? टाल. टी का मतलब ट्रिप्सिन, ए का मतलब अमाइलेज और एल का मतलब लिपेज. अब ट्रिप्सिन का काम क्या है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा. ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा और लिपेज फैट्स को डाइजेस्ट करेगा. यानी ये तीनों के तीनों जो डाइजेशन का था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये तीनों का डाइजेशन ये एंजाइम्स के द्वारा हो जाता है. दैट इज एंजाइम्स डाइजेस्ट ऑल दीज 3 थिंग्स. अब इसके लिए भी हमने एक शॉर्टकट बनाया लर्न करने के लिए. हमने इसको ऐसे लिखा था
हम एक लड़की का नाम लिखते हैं, अंशु ने टप्पू को लाफा मारा। अंशु ने टप्पू को लाफा मारा। अंशु यानी ए मतलब अमाइलेज, सु अंशु यानी सु मीन्स स्टार्च। इसमें वर्ड के ऊपर इंपॉर्टेंस है ए और एस। तो अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, टप्पू टी यानी ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और लाफा यानी लिपेस फैट्स को डाइजेस्ट करता है। अंशु ने टप्पू को लाफा मारा यानी सिंपल है, अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और लिपेस फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। सो नाउ हियर बेसिकली द डाइजेशन प्रोसेस इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। नाउ एज डाइजेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड, द नेक्स्ट प्रोसेस विच स्टार्ट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। खाना तो डाइजेस्ट हो गया, पर अब उस डाइजेस्टेड खाने में से जितने भी न्यूट्रिटिव मटेरियल है वो डाइजेस्ट करना है। तो वो डाइजेशन भी कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स, सी दिस इज एब्जॉर्प्शन, इट कंटेन्स विली। विली इज नथिंग बट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम क्या है? देखिए, इसको मैं एक बहुत सिंपल लॉजिक से समझाता हूं। आपके घर में एक पानी का पाइप है, या आपका एक सिंपल रोड है। हम रोड से एग्जांपल लेते हैं। रोड है, अगर हाईवे का रोड बिल्कुल क्लीन रोड होता है, बिल्कुल साफ रोड होता है, तो उसमें गाड़ी बहुत फास्ट जाती है, बहुत फास्ट मूव करेगी। मगर अगर मुझे गाड़ियों को स्लो करना है तो मैं क्या करूंगा? उस रोड के ऊपर बम्प बना दूंगा। उस रोड के ऊपर इस तरह से बम्प बना दूंगा, ऐसे 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 बम्प बना दूंगा। अगर मैं गाड़ी को 60 की स्पीड पे भी लेके गया या 80 की स्पीड पे भी जा रहा हूं, पर अगर वहां पर बहुत सारे बम्प होंगे तो मेरी गाड़ी अपने आप स्लो हो जाएगी, ऐसे डुक 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 करके स्लो हो जाएगी। उसके आगे थोड़े और बम्प हुए, ऐसे मैंने कंटिन्यूसली सपोज 1 किलोमीटर तक अगर मैंने बम्प बनाए हैं कंटिन्यूसली, तो साहब मैं कितने भी स्पीड में गाड़ी लेके जाऊं, मेरी गाड़ी अपने आप स्लो हो जाएगी। तो दिस इज द लॉजिक विच विलीज डज। तो विली क्या काम करता है? पहले तो वो एरिया बढ़ाता है, प्लस वो जो फूड है जो इंटेस्टाइन में मूव कर रहा है वो विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से मूव कर रहा है। तो अब वो फूड, उसकी जो फ्लो होने की स्पीड है, इट बिकम स्लो, और उसकी जो वॉल्स है, इंटेस्टाइन की वॉल्स है, द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, इट स्टार्ट्स एब्सॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स which are required for our body. So now this is the process which is being done. So absorption is done in where? Small intestine with the help of villi. Now absorbed material is moved in the blood. You know, blood is flowing in whole of your body. So now this blood, see this blood is circulated in whole of your body. So all the nutritive materials which you have missed, which are being obtained from the food, get supplied to whole of the body. पहली चीज। दूसरी चीज, अब आखिरी चीज, मतलब दूसरी चीज, अगला प्रोसेस है जिसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं। जिसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं। जिसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन फिर से कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब असिमिलेशन का मतलब क्या हुआ? कि हमने जो न्यूट्रिटिव मटेरियल ऑब्टेन किया है, सर सॉरी, असिमिलेशन इज नॉट इन इंटेस्टाइन, इट इज एक्चुअली इन होल ऑफ द बॉडी। नाउ असिमिलेशन काम क्या करता है? तो असिमिलेशन में whatever material we have absorbed, that is whatever material is absorbed, that is used for repair, growth and functioning of organs. असिमिलेशन में ऐसा होगा कि आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर से whatever nutritive material is coming, that is being used for repair of the cells, growth of the body and functioning of the organs. Now the waste material comes into large intestine. अब ऑलरेडी जो भी चीज थी वो यहां से लार्ज इंटेस्टाइन में आ गई। अब हम इसको इजेशन को
यहां पर ले लेते हैं इजेशन, it comes to large intestine. Now in large intestine, waters are absorbed. Water is absorbed here, and undigested food which is in semi-solid form is pushed. अब वो जो semi-solid food है, it moves into large intestine and finally is removed out of the human body from anus. Food here is being removed here through anus, and from the anus the food goes out of human body. एक बार undigested food बॉडी से बाहर निकल गया, इसका ये मतलब है कि डाइजेशन प्रोसेस खत्म हो।